students, welcome to Sri Sid Vidyapeeth School. I hope you're all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your English chapter 2, The Cherry Tree, written by Ruskin Bond. In this chapter, we are going to read a story about a 6-year-old boy named Rakesh who lived with his grandfather. One day while returning from school, he bought some cherries, and after finishing all the cherries, the last cherry seed he planted in the corner of his garden. And after some days, he saw the sapling of the tree, and after years, when it grew into a large, huge cherry tree. Rakesh felt very touchy. He felt so happy after seeing when he planted. It was a small seed, but after growing, it became a huge cherry tree. Rakesh felt so happy that he planted a tree and that grew into so huge tree. So students, use your prescribed textbook for a better understanding. See on page number 16. So let's start the chapter. Let's read a story about a young boy who grows a cherry tree in his garden. As I told you, it's a story about a young boy who grows a cherry tree in his garden. So let's begin the chapter. One day, when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small, bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. एक दिन 6 साल का राकेश नाम का छोटा सा बच्चा था. वो जब मसूरी बाजार से घर वापस आ रहा था तो वो चेरीज खाते हुए आ रहा था. तो यहाँ चेरीज कैसे थे ये बताया. चेरीज कैसे थे? चेरीज थोड़े स्वीट थे, थोड़े खट्टे थे, छोटे थे और ब्राइट रेड कलर्स में थे. और वो चेरीज कहाँ से आए थे, कहाँ से एक्सपोर्ट हुए थे? दे हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. कश्मीर वैली से आए थे. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. जहाँ राकेश रहता था, राकेश कहाँ रहता था? हिमालयन फुटहिल्स में. वहाँ कोई भी फ्रूट ट्रीज नहीं थे, ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं थे वहाँ. The soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. क्यों वहाँ पर ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं है? क्योंकि वहाँ का सॉइल बहुत ही स्टोनी है. क्योंकि स्टोनी क्यों है? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो ऑफकोर्स वहाँ तो स्टोन से ही भरती होंगे. स्टोनी थे और वहाँ का जो कोल्ड विंड्स थे वो प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते थे. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट्स ऑफ ओक एंड डिओडर. लेकिन माउंटेन के स्लोप्स में ज़्यादातर फॉरेस्ट भी रहते थे. वहाँ फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ ज़्यादा रहता था? ओक और डिओडर का. राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie. राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी के आउटस्कर्ट्स में रहता था. मतलब नॉट इन द सिटी. आउटस्कर्ट्स मतलब मसूरी जो जगह है उसके बाहर में. वो अपने दादाजी के साथ रहता था. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, जहाँ से फॉरेस्ट शुरू होता है. ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. उनका एक छोटा सा घर है टाउन के बाहर, मतलब वही आउटस्कर्ट्स में. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही ब्रॉट द चेरीज. राकेश अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था जब वो चेरीज खरीद के खा कर आ रहा था. ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच. कितना पे किया राकेश ने? 50 पैसा फॉर अ बंच. थोड़े से चेरीज कितने थे? वो 50 पैसा थे. It took him half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. राकेश को हाफ एन आवर लगा घर वापस आने में स्कूल से. और जब तक वो घर पहुंचा तो कितने सारे चेरीज उसके पास बचे हुए थे? 3 चेरीज उसके पास बचे हुए थे. Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw the grandfather in the garden. उसने अपने ग्रैंडफादर को एक चेरी खाने को बोला. मतलब खाइए दादाजी. जैसे ही वो घर घुसा अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा और उन्हें एक चेरी दिया.
Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. Grandfather ने एक चेरी ले लिया और राकेश बाकी दो खा गया. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round in his tongue until all the tang had gone. राकेश ने लास्ट चेरी को अपने मुंह में रखकर और बहुत देर तक उसको मुंह में घुमा रहा था जब तक उसका टेस्ट नहीं चल जाता. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. और फिर उसने मुंह से उस सीड को निकाला और अपने हाथ में रखकर उसको गौर से देख रहा था. Are cherry seeds lucky? asked राकेश. उसने अपने दादाजी से पूछा, क्या चेरी सीड्स लकी हैं दादाजी? तो उन्होंने जवाब दिया, ऑफ कोर्स. देन आई विल कीप इट. तो दादाजी ने कहा, हाँ. तो राकेश ने कहा, तो मैं रख लेता हूँ. नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे इफ यू वांट लक. तो उसके दादाजी ने कहा, नथिंग इज लकी, कुछ भी चीज़ लकी नहीं होता अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो. इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़. अगर तुम्हें लक चाहिए तो तुम उस सीड को कुछ यूज़ में रखो, कुछ काम में रखो, तभी वो तुम्हारे लिए लकी साबित होगा. सो नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू विद अ सीड? उसने पूछा, तो मैं इस सीड के साथ क्या करूं? प्लांट इट. उसके दादाजी ने कहा, उसको प्लांट करो. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड. तो राकेश ने एक छोटा सा स्मॉल स्पेड, मतलब वो मट्टी खोदने वाला लिया और उसने एक गड्ढा कर रहा था उस सीड को उसके अंदर रखने के लिए. हे, नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड. तो उसके दादाजी ने कहा, उधर नहीं, मैंने वहाँ पर ही मस्टर्ड सीड्स डाला है. प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब. और कहा, तुम उसे उस कोना में जाके प्लांट करो, जहाँ शेडी कॉर्नर, जहाँ उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. राकेश ने उस कॉर्नर, गार्डन के कॉर्नर में जाके, जहाँ सॉइल एकदम सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा मुलायम थी, वहाँ जाके उसे प्लांट करने वाला था. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. वहाँ की सॉइल इतनी सॉफ्ट थी कि उसे वहाँ डिग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे वहाँ खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. जस्ट वो सीड को ऐसे ज़मीन पे अपने हाथों से ही उसे प्रेस कर दिया तो वो ज़मीन के अंदर चली गई. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forget all about the cherry seed. उसके बाद राकेश अपना लंच किया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और उसने पूरी तरह से चेरी सीड के बारे में भूल ही गया. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees and the garden was dry and bare. जब वहाँ विंटर था हिमालयन हिल्स में, तो वहाँ ठंडी हवा जो चली थी. A cold wind blew from the snow. एकदम स्नो भी पड़ने लग गया था. हिमालय में तो स्नोफॉल होती है और वो हवा कैसी थी, वू वू करके वो डिओडर ट्रीज की तरफ चल रही थी. और जो गार्डन था राकेश का, वो एकदम सूखी पड़ गई, एकदम मतलब वो सूखी हो गई, ज़मीन एकदम सूखी हो गई, जैसे कि बताया कि वहाँ ज़्यादा प्लांटेशन नहीं हो पाता इस विंड के वजह से. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories. और इवनिंग के समय ग्रैंडफादर और राकेश चारकोल फायर मीन्स उन्होंने फायर जलाया क्योंकि बहुत ठंड थी ना, स्नो भी पड़ रही थी, तो उन्होंने आगी जलाई लकड़ी से और दोनों बैठे थे. तो ग्रैंडफादर राकेश को स्टोरीज सुना रहे थे. स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न्ड इनटू एनिमल्स एंड गोस्ट्स हु लिव्ड इन ट्रीज एंड बीन्स दैट जंप्ड एंड स्टोन्स दैट वीप्ड. तो दादाजी ने राकेश को स्टोरीज सुना रहे थे. किसके बारे में? उस स्टोरीज अबाउट पीपल, कुछ ऐसी स्टोरी सुना रहे थे जो कि एनिमल्स और घोस्ट में टर्न हो गए थे
जो कि ट्रीज और उस इंसानों के बारे में जो कि या तो जानवर बन गए या तो भूतों में बदल गए, जो कि वो पेड़ों पे रहते थे। बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स दैट whipped एंड इन टर्न, जो बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स दैट whipped मतलब वो बीन्स के तरह जंप करते थे और स्टोन्स के तरह वो घूमते थे। राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। राकेश न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रैदर वीक, क्योंकि ग्रैंडफादर का आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक था तो राकेश उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, especially after the stories, but grandfather wanted all the news. राकेश को न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा डल लग रही थी, स्पेशली जब उसके दादाजी ने उसे इतनी एडवेंचरस स्टोरी सुना रहे थे, जो कि भूत, एनिमल्स, ये सब के बारे में सुना रहे थे, तो उसे ये न्यूज़पेपर पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। लेकिन उसके ग्रैंडफादर को तो पूरी न्यूज़पेपर की न्यूज़ जाननी थी। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. They knew it was spring. उन्हें पता चल जाता था स्प्रिंग का मौसम है जब वाइल्ड डक नॉर्थ के तरफ चल जाती थी। कहाँ? साइबेरिया। Early in the morning when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards and heard the call of the birds clearly through the thin mountain air. जब सुबह के समय राकेश उठा और लकड़ियाँ काट रहा था फायर के लिए, तो राकेश ने क्या देखा? स्काई में एक वी शेप्ड फॉर्मेशन, मतलब वही वाइल्ड डक सारे नॉर्थ की तरफ उड़ रहे थे और वही वो बर्ड सारे नॉर्थ की तरफ उड़ रहे थे, क्लियरली नज़र आ रहे थे माउंटेन के एयर में। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. जब एक मॉर्निंग गार्डन में उसने झुककर एक छोटी सी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा कि वो जो चेरी ट्री था वो अब थोड़ी सी उग गई थी, सैपलिंग हो गई थी, उसमें पत्ते आ गए थे, छोटा सा प्लांट हो गया था वो, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग था राकेश के लिए। He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, "Grandfather, come and look, the cherry tree has come up." उसने थोड़ी देर फिर उस छोटी सी ट्विग को देखा, मतलब वही छोटा सा प्लांट उसको देखा जो चेरी ट्री हुआ था, और दौड़ के अपने दादाजी को बुलाने गया। दादाजी जल्दी आए और देखे चेरी ट्री बाहर आ गई। What cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. उस दादाजी ने पूछा कौन सा चेरी ट्री, क्योंकि वो तो भूल चुके थे चेरी ट्री के बारे में। The seed we planted last year, look, it's come up. वो सीड जो हमने लास्ट ईयर प्लांट की थी, देखिए वो अब आज बाहर आ गया है। राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. राकेश नीचे बैठ गया, एकदम हॉन्च मतलब वही नील डाउन होके बैठ गया, और उसके ग्रैंडफादर पूरी तरह से झुककर उस टिनी ट्री को, छोटी सी ट्री को देख रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 inches हाई। वो ज़्यादा नहीं, 4 इंच की, बस 4 इंच ही होगा वो ट्री। दिस इट्स अ चेरी ट्री, सेड द ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने कंफर्म कर दिया ऐसे वो तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। अब उसने राकेश को कहा कि अब तुम्हें इसे पानी देना चाहिए टाइम पर। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश दौड़कर अंदर गया और एक बकेट ऑफ वाटर लेके आया। डोंट ड्राउन इट, सेड द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोले पूरी तरह से पानी को उसके ऊपर, उसको उस ट्री को उसमें डुबा मत दो उस पानी में। राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles. उसके ग्रैंडफादर ने कहा उसको पूरी तरह से डुबा मत दो, बस थोड़ी थोड़ी पानी दिया करो। तो राकेश ने थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़का और उस पेड़ के चारों ओर पेबल्स लगा दिया, मतलब स्टोन्स सजा दिया, ताकि उस ट्री को सपोर्ट मिल सके। What are the pebbles for? asked grandfather.
for privacy, said राकेश। तो ग्रैंडफादर ने पूछा पेबल्स क्या करने के लिए? तो राकेश ने कहा for privacy. He looked at the tree every morning but it did not seem to be growing very fast. राकेश हर सुबह उठकर उस ट्री के तरफ देखता, लेकिन वो ट्री उतनी की उतनी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जल्दी बढ़ नहीं रही है, बिकॉज इट्स अ ट्री, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई। तो उसने उसे देखना छोड़ दिया और बस हल्के से ऐसे ऐसे अपने आँखों के कोने से देख रहा था। After a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. और एक हफ्ते बाद जब वो पूरी तरह से उस ट्री को देख रहा था तो उसने देखा कि वो ट्री 1 इंच और बढ़ चुकी है। That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from school in raincoat. और उस साल मानसून बहुत जल्दी आ गए थे और राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट, मतलब राकेश अब रेनकोट पहन के स्कूल जाता था और एंड गम बूट्स। Ferns sprang up from the trunks of the trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. Ferns sprang up means वहाँ जो पहाड़ी, मतलब वो तो हिमालयन एकदम माउंटेन एरिया था, तो वहाँ ट्रीज़ के ट्रंक्स में छोटे छोटे पत्ते आ गए थे और वो स्ट्रेंज, और लिलीज जो वाटर लिलीज जो बारिश के मौसम में होते थे वो भी हो गए थे लॉन्ग ग्रास में। और इवन अगर वहाँ रेन ना भी हो तो मतलब ट्रीज से वो मॉइस्चर हो जाता था भीग के, तो ट्रीज से बूंद बूंद गिरता था, मतलब फॉग, मतलब जो होश वगैरह जो बैठ जाता वो सबसे ड्रॉप्स गिरते थे। द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन। चेरी ट्री मॉनसून में बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गोट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। वो 2 फीट की हो गई थी और तभी एक गोट उसके राकेश के गार्डन में घुसकर सारा पत्ता खा गई चेरी ट्री का। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches रिमेन। खाली उसका स्टेम और 2 टीनी बहुत पतले पतले ब्रांचेस उसके बच गए थे, सारे पत्ते तो गोट खा गया। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. अब इस बात से राकेश बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, तो उसके ग्रैंडफादर बोले कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, तुम इतने दुखी मत हो। इट विल ग्रो अगेन, चेरीज आर टफ, वो फिर से हो जाएगा, चेरी ट्रीज बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। बारिश का मौसम ख़त्म होते होते उस ट्री में फिर से नए पत्ते आ गए। देन अ वुमन कटिंग ग्रास कट द चेरी ट्री इन 2। देन अ वुमन कटिंग ग्रास, एक औरत जब ग्रास काट रही थी तो चेरी ट्री को भी काट दी, वो 2 पीस हो गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. But the damage could not be repaired. Maybe it will die now, said Rakesh. जब वो औरत ने ग्रास काटते काटते चेरी ट्री को भी काट दी तो दादाजी ने उस औरत को बहुत ज़्यादा उनको डांटा कि आपने देखा नहीं वहाँ ट्री था, पर डांटने से तो चेरी ट्री तो फिर से होगा नहीं। तो इस बात से राकेश बोल रहा था शायद अब वो चेरी ट्री मर जाएगा। So students, here is the half part of this chapter. I hope you understood what I tried to explain. Try to read the chapter thoroughly. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video, and soon I am going to start the second part of this chapter in the next video.